हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर हो गया रे ऑप्टिक्स। जैसा तुम्हें याद होगा हम बात कर रहे हैं अपने मेजर टॉपिक प्रिज्म की। और प्रिज्म में अब तक हम डेफिनेशन एंड इट्स बेसिक, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म और इसके जो पॉइंट थे एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंड इट्स ग्राफ विद इंसिडेंट एंगल एंड डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इससे पहले के जो हमारे सभी टॉपिक हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें जाकर उन्हें देखिए और उसके बाद हम अपने इस टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक हो गया है हमारा डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। ओके, तो लेट n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म with respect to surrounding. Here A, B, C represent a base of prism and a light ray incident on a refracting surface AB. Okay, here AB is refracting surface of prism. Done. You know that very well. When a ray travel rarer to denser medium, then refracted ray bends towards the normal. So first of all we draw a normal, and you know that very well, normal is perpendicular to surface. Okay, here dash line represent, this line represent a normal. Okay, so it is actual direction of incident ray. Okay, and refracted ray bends towards the normal like this. Okay, अब it is angle of incidence and it is angle of refraction for first surface. Agree? And in previous video we discuss all about that, which is this. It is incident ray, it is angle of prism, direction of incident ray, emergent ray. Remember it? ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही हमें दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है, हालांकि हम ये पहले ड्रॉ कर चुके हैं. ओके, सो this ray of light travel denser to rare medium because it is prism, and prism normally made by glass or plastic, so it is denser compared to surrounding, and surrounding medium is air. Okay, so it is denser medium and it is rarer medium, and when a ray travel denser to rare medium, then refracted ray move away from the normal. Again it is normal, here dash line represent a normal, and refracted ray move away from the normal like this situation. And in this situation angle of refraction represented by E. It means here E known as emergent angle. Okay, and here I2 is incident angle for surface AC. Okay, R2 angle of refraction for surface AC. AC सरफेस के लिए R2 हो गया. आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, और ये सारी चीज़ हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, sin I upon sin R1 here is equal to refractive index of second medium with respect to first, and it is, we consider, n. Agree? But in the case of
minimum deviation, in the case of minimum deviation, as we discussed in last video, like this, in the case of minimum deviation, r1 is equal to r2, so we get r is equal to a by 2, first point. Second point, in the case of minimum deviation, I is equal to e, so I is equal, if I is equal to e, and we know that del is equal to I plus e minus a, if we're talking about minimum deviation, then del represented by del m, and e is equal to I, then I plus I minus a, and after calculation we get I is equal to del m plus a होल ब्रैकेट बाय 2. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, जो हमारा टॉपिक था ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को पहले देखना, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आने वाले हैं. तो हम यहाँ पर आ गए. ओके, तो देखिए अब, तो अभी हमने सीखा मिनिमम डेविएशन के केस में क्या क्या होता है. ये मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ है ना. मिनिमम डेविएशन के केस में हमने क्या देखा है, आई जो होता है हमारा वो होता है डेल एम प्लस ए बाई 2 एंड r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r होता है, ये है ना मिनिमम डेविएशन केस में. हैंस हम अगर r की वैल्यू लिखना चाहें तो वो आ जाती है a बाई 2. क्लियर. सो वैल्यू ऑफ I and r2 put in इक्वेशन फर्स्ट. इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट. तो देखिए जैसे मैंने भी बताया, r1 कह लीजिए, सॉरी r1 कह लीजिए, r2 कह लीजिए, r कह लीजिए, बात एक ही होती है मिनिमम डेविएशन केस में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो i और r1 की वैल्यू, यही r1 की वैल्यू है, यही r2 की वैल्यू है और यही r की वैल्यू है. ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं. वी गेट साइन i, वैल्यू ऑफ i इज डेल m प्लस a बाई 2 ब्रैकेट अपॉन साइन a बाई 2 इज इक्वल टू n. डन. इट इज़ हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला. ओके, वेयर del m is minimum deviation, okay, a angle of prism and n refractive index of prism. ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा टॉपिक जिसका नाम था डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल. तो किसी भी प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n, वो कितना होगा, साइन डेल m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 इज इक्वल टू n. ये हो गया हमारा डेरिवेशन फॉर्मूला, याद रखना है. अब देखिए इसमें एक केस और आ जाता है, अगर हमारा प्रिज्म बहुत ही थिन हो तो क्या करते हैं. ओके, तो लुक हेयर, if we're talking about thin prism, it means thin prism is like this. In this situation, angle of prism A, B, C, angle of prism is very less. देखिए यहाँ तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस केस में कैसा हो जाएगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो जाएगा और डेल की वैल्यू तो अपने आप में ही बहुत कम होती है. तो for a thin prism, angle of prism is very small, therefore del m is small also. Okay, hence we can take
साइन डेल एम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई टू। मीन्स जो पूरी टर्म है हमारी साइन डेल एम प्लस ए बाई टू को हम सिर्फ लिख सकते हैं डेल एम प्लस ए बाई टू। सिमिलरली साइन ए बाई टू टर्म को लिख सकते हो आप ए बाई टू। ऐसा क्यों? बिकॉज इफ एंगल इज लेस देन 20 डिग्री एंड एंगल मेजर इन रेडियन देन साइन थीटा वी टेक अप्रोक्सीमेट थीटा। याद रखोगे? मैं चलो इस बात को लिख देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, इसका कोज क्या है? इफ थीटा इज लेस देन 20 डिग्री एंड थीटा मेजर इन रेडियन देन वी कैन से साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, cos थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। लेकिन ये कंडीशन तभी होती है अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। तो कहने का मीनिंग साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं बशर्ते थीटा रेडियन में मेजर किया गया हो। तो इसीलिए इस सारी टर्म को तुम थीटा एज्यूम कर लीजिए, कर सकते हो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा, जो हमने थीटा एज्यूम किया है इसको थीटा एज्यूम कर लोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि ए बाई टू आ जाएगा। ओके, और ये सिर्फ किसके लिए? फॉर ए थिन प्रिज्म। डन। अब देखिए, बाय फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या फॉर्मूला होता है हमारे प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? जैसा अभी हमने पढ़ा, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू एन, बट साइन डेल एम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई टू। सो डेल एम ए बाई टू अपॉन ए बाई टू is equal to n, implies that 2 cancel by 2 and we get del m plus a is equal to, look here, na and del m is equal to a common n minus 1. It is another formula of minimum deviation, but it is especially for a thin prism. So in this video we talking about derivation for refractive index of prism material, and we get conclusion refractive index of prism is equal to sine minimum deviation plus angle of prism by 2 upon sine angle of prism by 2. ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट thin prism, then we get another relation which is del m is equal to a n by 2, where del m is minimum deviation, a angle of prism and refractive index of prism -1 तुम जानते हो। तो ये हुआ हमारा वीडियो का अंत। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिज्म से रिलेटेड एक नए फिनोमेना की बात करने वाले हैं जो तुमने 10th क्लास में ही पढ़ा था, डिस्पर्सन। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, इसको नोट करना, अच्छे से तैयार करना, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट, बाय।